अब एक रिव्यूअर की वजह से अगर चंद हजार लोग भी फिल्म देखने नहीं आते तो आप समझ सकते हैं कि ये न केवल निर्माता का बल्कि संपूर्ण फिल्म उद्योग का कितना बड़ा नुकसान है। भारत सरकार का कितना बड़ा नुकसान है कि उतने लोग जो नहीं आए फिल्म देखने के लिए वो उस टिकट के साथ जीएसटी पे करते जो भारत सरकार के खाते में जाता, उसको भी इन रिव्यूअर्स ने आने से रोक डाला। इस सारी बात को मैं प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अंत में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि जब शोले फिल्म रिलीज हुई थी तब उसको किस प्रकार के रिव्यू दिए गए। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की एक मैगजीन होती थी, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया ने शोले के बारे में क्या कहा, अपनी आंखों से देखिए। There is nothing in the script of Salim Javed to make this the greatest story ever told. It is just another dacoit tale on the lines of Mujhe Jeene Do, Ganga Jamna, Mera Gaon, Mera Desh, etc., etc. The stereophonic sound and other technical innovations redeem Sholay from the shallows. Ramesh Sippy has introduced a feeling of verb and some of the action is gripping. But no sooner you are out of the theater, it is gone. You realize that a story built on negative emotions like hatred and violence can have no lasting impression on the mind. Where the film fails is in its music. There is not one song that can be singled out as a noteworthy composition. तो शोले फिल्म के बारे में ये शब्द थे टाइम्स ऑफ इंडिया के इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के। अब देखिए द इंडियन एक्सप्रेस के संडे स्टैंडर्ड ने शोले फिल्म के बारे में क्या कहा। इसकी हेडलाइन थी येट अनदर डेकॉइट फिल्म विद हॉलीवुड टच, और उनके फिल्म क्रिटिक ने लिखा, in their desperate search for new material, the manufacturers of Bombay's Dacoit series have now scraped everything off the barrel, and so what Salim Javed sit down to do is the painstaking job of reassembling the parts strictly to suit the individual talents of the greatest star cast ever assembled, all of which, in brackets, Butch Cassidy and the Sundance Kid, Bad Day at Black Rock, Bonnie and Clyde, Secret of Santa Victoria, add up to a shoddy dog western, sporadically funny, ludicrously heroic, monstrously violent, and sprawled in loose-limbed abandon. ये था इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का ओपिनियन, और अब आप देखिए क्या था हिंदुस्तान टाइम्स का ओपिनियन। Its technical values apart, Shole's plot is laden with moral snapping implications which police officer, or for that matter judge, will not get cold feet in dealing with or sentencing a dangerous criminal after seeing the plight of Sanjeev Kumar in this film. Sholay manages to raise screen violence to almost unimaginable heights, and thanks to our censors, children may relish it too. ये था हिंदुस्तान टाइम्स का ओपिनियन, और अब आप देखिए द स्टेट्समैन का ओपिनियन क्या था। द स्टेट्समैन ने अपने रिव्यू की शुरुआत की, इफ आई वर आस्क्ड टू सम अप दिस फिल्म इन वन वर्ड, the word would be endless. For nearly 4 hours, this film assaults one's senses psychologically, emotionally, and at the end, almost physically. One comes out of the cinema drained and exhausted. Technically, this film achieves the kind of splendor that is comparable
to standards anywhere in the world. Thematically, it's an exercise that verges between two peaks of inanity and insanity. इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उस समय के जो लीडिंग अखबार थे, जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स थे और उनके जो रिव्यूअर्स थे, वो बहुत ही प्रतिष्ठित इंटेलेक्चुअल्स थे। तो उनका क्या ओपिनियन था शोले के बारे में, उन इंटेलेक्चुअल्स का और इतने प्रतिष्ठित प्रकाशनों का क्या ओपिनियन था शोले के बारे में, जो आज हिंदी सिनेमा के एक क्लासिक के रूप में प्रतिष्ठित है और जो हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय फिल्म है, जिसे सबसे अधिक दर्शकों ने देखा। जब हम राजनीति में मतदाताओं के निर्णय का स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं, तब हम उन्हीं मतदाताओं द्वारा दिए गए मतों का, जब वो सांस्कृतिक चुनाव में मत दे के आते हैं फिल्म को, तब हम उसका सम्मान क्यों नहीं करते। शोले सबसे अधिक दर्शकों द्वारा देखी भी गई और आज बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी उसको बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में स्वीकार भी करते हैं। तो जो आज शोले की परिस्थिति है वो सही है या वो सही है जो अभी अभी हमने उन रिव्यूज में देखी और पढ़ी सुनी, जो उस समय के लीडिंग न्यूज़पेपर्स के क्रिटिक्स ने शोले के बारे में कहा। तो आज तो इतने प्रतिष्ठित ना प्रकाशन है और ना ही इतने बड़े इंटेलेक्चुअल रिव्यूअर्स हैं, तो वो किस मॉरल अथॉरिटी से एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री को, जो विश्व में हॉलीवुड का एकमात्र प्रतिद्वंदी है, हॉलीवुड ने विश्व में समस्त राष्ट्रीय सिनेमाओं को समाप्त कर दिया और वहां पर अपना सांस्कृतिक परचम लहरा दिया, लेकिन वो भारत में ये करने में आज तक सफल नहीं रहा है और उसके लिए पूरा का पूरा श्रेय जाता है भारतीय फिल्मों के निर्माताओं, निर्देशकों और तकनीशियनों को। इन महान लोगों के प्रयास को किसी भी व्यक्ति को आके और केवल 4 पैसे कमाने के लिए उसके बारे में सस्ते शब्द बोलकर व्यूज और 4 पैसे कमाने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं अनुरोध करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड और कंज्यूमर अफेयर्स से, क्योंकि वो सिनेमा के लिए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, कि वो फिल्मों को आईएसआई की तरह सर्टिफिकेट दें। फिल्म रिलीज होने के पहले एक उसको सर्टिफिकेट मिले कि इसका जो साउंड डिजाइन, इसका विजुअल डिजाइन, इसकी सिनेमाटोग्राफी, इसके साउंड रिप्रोडक्शन, everything is according to the standards set by the Ministry of Food and Consumers Affairs. इस प्रकार कोई भी फिल्म जब रिलीज होगी तो उसके कंटेंट के ऊपर सेंसर बोर्ड की एक मोहर होगी भारत सरकार की, द कंटेंट ऑफ दिस फिल्म हैज बीन अप्रूव्ड by the government of India and it will have another ISI type of a certificate that its technical standards are at par with the standards set by the government of India. और ये एक बार सेट हो जाएगा तो इसके बाद में जो कोई भी फिल्म के बारे में जो कुछ भी बोलेगा उसके नीचे उसको लिखना पड़ेगा, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन and not a scientific evaluation of the film. Thank you.